alaikum or namaste sabhi judges ko, honorable judges and everybody there. You might get little disturbance because I have a small kid at my home. मेरी poem का जो title है, it's very untold thing, that is marital rape. Okay, so with all your permission, I will start. A no means no. Just give me a minute because there is a little more disturbance over here. Am I audible to everyone? Yes, yes, you're audible. Okay. No means no. In the blink of night, all my treasures get out of sight. Every night as a heavy mountain, torture that never come to an end. Why? Why I wear vermilion pure every day and pray for demon to forever stay? Why custom clutches only me while my soul pleads to be free? All my dreams get abashed on my bed like scattered beads on holy thread. I am his lawful wife, but I have a wish and a life. Am I not allowed to say no? Am I puppet of his show? I would rather be called heretic than to be showcased as a piece of aesthetic. We were vowed to be together. Mercilessly, he always kept me under. Why? Why am I asked to wear beautiful silence and hear devil do malevolence? Why tradition tied only me while my conscience cries to be free? My trust gets shattered in my tear like broken urn of earthenware. I am his better half, not a slaughtering calf. Why my permission is not taken? Am I bare land that can be unforsaken? Love is protective and love is mutual. What he does is just physical. If marriage is legally documented, why forceful love is not omitted? Why all laws just abide me? While my self respect sobs to be free, my confidence gets shivered in my shrieks like a hammer thumps on bricks. We ought to be partner, but he become a monster. Why my pains seems to be so perplexed? Why marital rape so complex? Why marital rape is so complex? Thank you so much. Thank you so much, ma'am. And it was a beautiful poem. Just a आप minute. ये poem के अंदर Hmm. Beautiful. Let's say you have portrayed the women part of the society in such a way that is brought out the actual, I'll say, Indian social problems which we are facing day by day in our, rather we are seeing, and let the people be so advanced, but the double standard for women, it will be always maintained at least for 50 years further. That is what I expect. So the way you have brought it out, these the very good words you have. नमस्ते सभी को। मेरा नाम रेखा किच्ची है और मेरी कविता का शीर्षक भी आत्महत्या ही है। तो स्टार्टिंग है। आज अपनी आंखों के सामने एक ऐसा किस्सा देखा मैंने, जो था किसी के कलेजे का टुकड़ा, वो हिस्सा देखा मैंने। उसको देखकर रूह पूरी कांप गई, उसकी छाया तो मेरे जीवन के चलचित्र को भाप गई। काश काश जीते जी कोई हाल पूछ ले तो मरने तक की बात आती नहीं। जीना चाहते हैं सब सुकून से, लेकिन खुशी किसी को रात आती नहीं। बेसुध थी वो, बेसुध थी वो और लाश बन चुकी थी। किसी की कहानी का हिस्सा बनने आई थी वो और काश बन गई थी। न जाने क्यों, न जाने क्यों कोई किसी के मन की बात को समझ नहीं पाता। न जाने क्यों किया हुआ वचन वो निभा नहीं पाता। किसी की बेटी, किसी की बहन थी वो, आज कोने में लाश बनकर पड़ी थी वो। वो मंजर ऐसा था, वो मंजर ऐसा था कि साथ आए लोग उस पल भी उसकी ही कमी बता रहे थे।
या यूं कहें कि उसके मरने का इल्जाम पर उसी पर ही लगा रहे थे। मगर बेचारी जिस विश्वास पर आई थी किसी के साथ, वो साथ उसने छोड़ दिया। नहीं सहन कर पाई वो, नहीं सहन कर पाई वो, तभी तो सजा का रुख सिर्फ अपनी तरफ मोड़ दिया। जिसको लगता है जीवन आसान है, जिसको लगता है जीवन आसान है, उसको डरा गई। आज अपनी जिंदगी को जिंदगी हमेशा के लिए हरा गई। आज इंसानियत को एक बार फिर मरते देखा। इस दर्द भरे माहौल में उन लोगों को हंसते देखा। किसी की मौत पर दुख नहीं, उस लड़के पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। अपने आप को बचाने के लिए अनचाहे पैतरे आजमाए जा रहे थे। आज इंसानियत को एक बार फिर मरते देखा। इस दर्द भरे माहौल में लोगों को हंसते देखा। थैंक यू। ये रियल केस था हॉस्पिटल का। मैं रिया लक्ष्मी और मेरी कविता का शीर्षक है आरक्षण। सुनिएगा कि एक नन्हा मासूम बच्चा जब पढ़ने बैठता है, एक नन्हा मासूम बच्चा जब पढ़ने बैठता है, रंग बिरंगी किताबें और आंखों में सपने लिए, सबके सपनों की चादर को अपने कंधे पर सिए, तब उसे कहाँ पता होता है, तब उसे कहाँ पता होता है आगे जात पात की दीवार है, जिसके आगे उसकी सारी पढ़ाई बेकार है। उसे भी आरक्षण की आग में जलना होगा, उसे भी आरक्षण की आग में जलना होगा। एक अदद नौकरी की तलाश में दर दर उसे भटकना होगा। जब उससे कम काबिल लोग ऊंचे ओहदों पर बैठे होंगे, जब उससे कम काबिल लोग ऊंचे ओहदों पर बैठे होंगे, तब अपने आत्मसम्मान को मारकर उसे उन्हें भी सलाम ठोकना होगा। और एक समय ऐसा भी आएगा जहां उसकी सारी प्रतिभा बेकार होगी। एक समय ऐसा भी आएगा जहां उसकी सारी प्रतिभा बेकार होगी, आंख वाले ठोकरे खाते फिरेंगे और अंधों की सरकार होगी। आरक्षण दो, आरक्षण दो। मैं आरक्षण विरोधी नहीं, पर प्रतिभावान को काम ना मिले ये भी तो सही नहीं। अरे अरे खुद सोचो कि जब 100 नंबर वाले सड़क पर ठोकर खाएंगे और 50 नंबर वाले नौकरी पा जाएंगे, तो क्या खाक पुलिस चोर पकड़ पाएगी? क्या हम अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ा पाएंगे? और क्या सरकारी इंजीनियर टिकाऊ सड़कें और पुल बना पाएंगे? और आरक्षण वाले डॉक्टर मरीजों की जान कैसे बचाएंगे? सोचो, सोचो। अंतिम की पंक्तियों पर सभी का ध्यान चाहूंगी कि खुद सोचो कि क्या वो देश कभी भी तरक्की कर पाएगा जहां किसी की प्रतिभा और पढ़ाई से पहले किसी की जाति का नाम आएगा, जहां किसी की प्रतिभा और पढ़ाई से पहले किसी की जाति का नाम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी वाह, गजब हो गया, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। और एक बता दूं मैं आपको, आपने पुलिस की बात की है, अगर कोई आदमी आरक्षण वाला कोई एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए और सर्जन बन जाए, कार्डियोलॉजिस्ट बन जाए, तो क्या आप उसका ऑपरेशन कराएंगे? क्या नहीं कराएंगे? मेरे साथ ये वाक्य हुआ है, मेरे साथ ये वाक्य हुआ है कि कार्डियोलॉजिस्ट एक आरक्षण वाला था, मैंने मना कर दिया था कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मैं किसी और से ऑपरेशन कराऊंगा। लोग बाग नाराज हो गए थे, क्यों नहीं करा रहे हो? मुझे पता है 100 में से 2 नंबर 50 नंबर लेके आया, ये क्या करेगा ऑपरेशन? तो बात जरूरी है आरक्षण में। तो ये मामला हमारे, जो आपने सबसे पहली लाइन बोली, बहुत ही सुंदर लाइन बोली, बहुत बढ़िया लाइन, और लास्ट वाली लाइन बहुत सुंदर। तालियां बजनी चाहिए इस पर, निश्चित रूप से, बहुत सुंदर। मिलना तेरा होना, तेरी यादें, तेरी बातें, न जाने क्या जख्म छोड़ गई है। तुझसे मिलना तेरा होना, तेरी यादें, तेरी बातें, न जाने क्या जख्म छोड़ गई है। तेरी अदा, तेरी वफा, तेरी कफा, तेरे कदम, न जाने मुझ में क्या बदल गई है। न जाना, न तेरा जाना, तेरा मुंह मोड़ना, तेरा यूं मुझसे बात ना करना, तेरी नाराजगी न जाने मुझे क्यों तोड़ गई है। तेरा ना होना, तेरा होना, बस एक पल है मुझ में, अब कुछ ना रहा मुझ में। तेरी बातें बस सजा रखी है, तेरी बातें सजा रखी है। तेरा होना भी अब मुझे खलने लगा है, तेरा होना भी अब मुझे खलने लगा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। Good evening, everyone. I, Sanjana Manja, a budding writer, and today I am going to perform on
Teenagers' favorite topic, as usual, breakup. Yes, something different, something interesting, something much more special. Here I go. Breakup. How trendy this word is nowadays. What are the after effects? Who even cares? For you, it may sound like a joke, but really, after a breakup, my heart turns to rock. Poetry is a way to show my deep scars that I loved someone on earth and he left me on Mars. How badly I used to save my time for him. Being a part of the joint family, I was treating him like a king. I was stupid to make my parents feel like fools because daily talks and meetup were his rules. He was a nice guy. I left him because he spoke millions of lies. Baby, you ate food? Baby, why aren't you in mood? Baby, I am here just only for you. Baby, you have made my life like clouds blue. In love, that poison words also seem sweeter. In dreams, I was making our kids' future brighter. He treated me like a Paris princess, but I didn't see his fake hidden faces. My love for him was flowing like the Ganga river, and today I am admitted in hospital because of breakup's high fever. I can't control my thoughts running through my head. Nobody sees my eyes turning red. This stupid. Yes, me, still I cry, not for him, but on myself, to give my heart to fry. Someone please just ask him how delicious it is, mixed with snake like peoples, honey like talks, and idiot like his miss. Sorry, ex-miss. First I used to count the stars sleeping on his lap. Now I used to count the problems sitting on my bed with slaps. First I used to sleep on his shoulder and wipe out my tear. Now I used to sleep on the floor and pass the days with fear. First, I used to smile and laugh when I was with him. Now I am laughing the whole day at myself and even in my dream. I said, now, for you, it may sound like a joke, but really, after breakup, my heart turns to rock. Thank you. थैंक यू सो मच संजनाम। रिव्यूज उनके सबके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं पोएट्री कितनी अच्छी थी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हेमा सिन्हा है और मैं पोएटिक एसेंस पब्लिकेशन कम्युनिटी से हूँ और मैं चलो आगे चलो। सॉरी स्टार्ट करूँ? हमने नहीं सुना। हेमा जी किसी ने नहीं सुना। किसी ने नहीं सुना। सॉरी मैम। कोई बात नहीं, आप आगे चलिए। अब तो होना तो हो गया जो होना था। जी स्टार्ट करें। मैंने जो कविता लिखी है वो दो प्रेम करने वालों के जो प्रेम में बाधाएं आ जाती हैं उसी मुलाकातों के दर्द के बारे में लिखा है और ये 14 लाइंस की कविता है और पहली बार ही लिखी है। ये तुकबंदी वाली, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, फिर भी कोशिश करी। मैं शुरू करती हूँ। मेरा शीर्षक है कविता का अधूरी मुलाकातों का दर्द। तुम ना मिले जो दोबारा, दिल मेरा रोएगा, रात भर जाग कर पलकों में गुजारा करेगा। बातें जो थी दिल की, दिल में बसने लगेंगी, अधूरी मुलाकातें बिछड़ने का दर्द सहेंगी। तुम ना आए यदि तो कोशिश हो जाएगी असफल, हमारे इश्क की कहानी पूरी होगी भी विफल। मेरी आंखों की जुबां सह कर कहेंगी, कुछ अनकही बातें अश्कों में बहेंगी। दर्द जो मिला इश्क में, दिल शीशे सा चूर होने लगेगा, दीदार को तरसता ये दिल टूटने को मजबूर हो जाएगा। और अधिकतर देखा होगा प्रेम में लोगों को ख्वाब भी अधिकतर उसी के आते हैं, तो उसी में वो बोलते हैं, पलकों में मिलन के ख्वाब जो यूं ही सजेंगे,
पलकों में मिलन के ख्वाब जो यूं ही सजेंगे, दिल में दुखों के बादल बन बरसते रहेंगे। प्रेम के शोले भड़कते भड़कते शांत होने लगेंगे, यादों के फूल जल जल कर राख बनेंगे। तुम ना मिले जो दोबारा, दिल मेरा रोएगा, रात भर जाग कर पलकों में गुजारा करेगा। धन्यवाद।